Hi guys, welcome to Alphabetize and I am Jyotiranjan. Today we are going to review the question paper of 2019 Men's Psychology Optional. Okay, and in this review part we will discuss many things such as chapter wise questions and a brief explanation of those questions. Friends, please subscribe our channel so that you will get notification immediately when we will upload our videos. Okay, and also please join us in Telegram. Before starting the session, I would like to tell you that what would be your targeted score for your psychology optional subject. The perfect and the targeted score for the psychology optional subject should be 300 plus. Okay, 300 plus. आपने एक इलेक्शन नारा सुना होगा, रैली इलेक्शन नारा सुना होगा, अब के बार 300 पार। यही होना चाहिए आपका भी नारा, अब के बार 300 पार, जैसे फाइनल सिलेक्शन होके ही रहेगा। ठीक है, कोई भी कसर ना छोड़िए ऑप्शनल प्रिपरेशन में या जीएस प्रिपरेशन में। इफ यू वांट टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट देन योर ऑप्शनल मार्क शुड बी अबव 300 प्लस। ठीक है, ये कैसे करना है? सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग से भी हमें काम लेना पड़ेगा। राइटिंग जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट है इसका, मेंस का राइटिंग आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली एग्जाम हॉल में। उसमें राइटिंग के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है एग्जाम्पल के साथ। और साइकोलॉजी ऑप्शनल में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल्स प्लस थ्योरीज, किसने कौन सा थ्योरी प्रपोज किया था, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। डोंट एवर फॉरगेट टू मेंशन द थ्योरीज and the theorist who proposed that theory. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। and also examples, perfect examples in right place. Let's start the session. Before starting the review session of the question paper, let's have a brief discussion about the syllabus of psychology paper 1. Friends, first chapter is your introduction chapter and ये chapter में जो बेसिक्स है साइकोलॉजी के बारे में वो बताया गया है। ठीक है, एंड द सेकंड चैप्टर इज योर मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड चैप्टर इज योर रिसर्च मेथड चैप्टर, फोर्थ इज योर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देन द फिफ्थ चैप्टर इज योर सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन. In a different session we will analyze the syllabus of psychology paper 1 and I will update that video very soon. Please subscribe our channel so that you will get the notification immediately when I will upload the video. The sixth chapter is learning and our seventh chapter is about memory. Then eighth chapter is thinking and problem solving. Ninth chapter is motivation and emotion. 10th is our intelligence and aptitude. Then the 11th chapter is personality. 12th chapter is attitudes, values and interests. And the 13th chapter is language and communication. 14th chapter is issues and perspectives in modern contemporary psychology. These were our 14 chapters of psychology paper 1 and now we will discuss the question paper. syllabus analysis में एक different video में upload करूँगा और please subscribe our channel ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस एनालिसिस की, हर चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से हम पढ़ेंगे, कौन सा बुक्स फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द रिव्यू सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द एडिफेसी ऑफ बिहेवियरिज्म वाज बिल्ट ऑन द लूप होल्स ऑफ टेलियोलॉजिकल अप्रोच इन साइको एनालिसिस. इवैल्यूएट. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर से आया है. ठीक है, जो इवोल्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, और इसमें दो चीज़ें, फर्स्ट थिंग इज योर बिहेवियरिज्म एंड द नेक्स्ट और द सेकेंड थिंग इज योर साइको एनालिसिस. ठीक है, बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियरिज्म. और बिहेवियरिज्म का जो फंडा है वो लूप होल्स, किसके लूप होल्स के ऊपर बना हुआ है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच in psychoanalysis. See friends, you need to evaluate this and the question says how the edifice of behaviorism was built on the loopholes of teleological approach in psychoanalysis. Psychoanalysis में क्या है कि अगर फ्रूड का psychoanalysis हम थ्योरी देखेंगे उसमें क्या है, एक तो है आपका लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपका कॉन्शियसनेस है,
then your pre-consciousness, then your unconscious, and also your structure of personality, दैट इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये था साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। बट बिहेवियरिज्म क्या कहता है? बिहेवियरिज्म ये कहता है, बिहेवियरिज्म वाज प्रपोज बाय जॉन बी वॉटसन एंड देन स्किनर। बिहेवियरिज्म इज वन टाइप ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक साइकोलॉजी, बिकॉज बिहेवियरिज्म ये कहता है कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स साइको एनालिसिस कॉन्सेप्ट। ओके, क्योंकि साइको एनालिसिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ये सारे चीज़ है ना। तो बिहेवियरिज्म ये कहता है कि वी शुड नॉट काउंट दोज थिंग्स विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व। ओके, तो बिहेवियरिज्म के हिसाब से हमें वो चीज़ ही काउंट करना है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स है और जो ऑब्जर्वेबल थिंग्स है उसको ही काउंट करना है, ना कि साइकोलॉजी में, ना कि जो ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, तो एक साइंटिफिक साइकोलॉजी हो गया बिहेवियरिज्म। ओके, बिहेवियरिज्म के हिसाब से वी शुड नॉट कंसिडर दोज थिंग्स which are not observable. So according to behaviorism, psychology should be based on which is observable and verifiable. ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, जो वेरीफाई नहीं हो सकता है, उसके ऊपर साइकोलॉजी बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था बिहेवियरिज्म। और साइको एनालिसिस आपको तो पता है, तो इसको आपको मैच करके लिखना है और इवेलुएट करना है। ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। ये तो सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपका मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है। बोथ दिस डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक आर टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाउ दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड जो सी है, वन सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। और देखिए चैप्टर 3 का जो है रिसर्च स्टेप्स, मेजर स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, उसमें एक चीज़ है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। वहाँ से आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड सुइटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन डी इज हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशंस, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सेम। ये आपका जो है चैप्टर 5 से है, sensation, attention and perception. Mainly this is from the perception part. Question number 5, that is question number E, is your, in what ways is deviation IQ is different from traditional IQs? Here there are 2 types of IQs. You need to differentiate both these IQs, both these types of IQs, that is your deviation IQ and your traditional IQ. Okay, so this is from chapter 10th, intelligence and एप्टीट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट है ए, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ मेमोरी। ओके, मेमोरी चैप्टर से है, बहुत इजी है। इवेलुएट द स्टेटमेंट इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस। साइकोलॉजी हो या कोई भी ऑप्शनल हो, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल इज ए मस्ट, आपको एग्जाम्पल देना ही देना है। डोंट ओनली रीड, आपको सिर्फ अगर आप पढ़ के जाओगे तो सिर्फ पढ़ के जाओगे, रट के जाओगे और लिख के आओगे, बट आपको समझना है चीज़, तब जाके आप एग्जाम्पल दे पाओगे। विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट गिव द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, ये ध्यान रखिएगा। देन द नेक्स्ट इज योर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ attachment to parents in social and emotional well-being of a child, illustrate from the perspective of developmental theories. This question comes from chapter 4. First thing is you need to mention about the developmental theories and how the attachment of a child to parents in social and emotional well-being is important. ठीक है, its significance. What is the significance of attachment to parents in social and emotional well-being of a child? Then the next question is here, how do environmental factors determine the sensation of hunger? ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 से है, sensation, attention, perception. You can find the answer when you will go through the sensation part. Next question is from chapter 2 and it says differentiate between experimental and quasi-experimental design. Evaluate the applications of quasi-experimental design in psychological research. Okay,
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर से, दैट इज योर मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्जेंट थिंकिंग। See friends, this is from chapter 8, thinking and problem solving, and you need to differentiate divergent thinking from convergent thinking. Okay, and also you need to discuss the methods to foster divergent thinking in children. Convergent thinking and divergent thinking are different types of thinking process, तो इसका जो डिफरेंस क्या है वो मेंशन करना है, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन में डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे डेवलप करना है वो भी मेंशन करना है हमें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, डिस्कस द प्रोजेक्टिव टेक्निक एज ए मेथड फॉर असेसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। ओके फ्रेंड्स प्लीज join our telegram channel so that you will get the PDF of this copy. This is the marked copy which I marked with highlighted, and also I have mentioned the chapters. तो ये जो क्वेश्चन था अचीवमेंट मोटिवेशन, ये 9 चैप्टर से हाउ द प्रोजेक्टिव टेक्निक हेल्प्स इन असेसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4A इज डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस डेप्रिवेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर विथ एम्पिरिकल एविडेंस। फ्रेंड्स कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टिमुलस वर्ड है और चैप्टर में भी मिल जाएगा, बट तो एग्जैक्ट चीज़ है स्टिमुलस डेप्रिवेशन, दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर 14। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखिए, ये आप देख रहे हो स्टिमुलस डेप्रिवेशन। देन द नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम चैप्टर 11, दैट इज योर पर्सनालिटी चैप्टर। आपको डिफरेंशिएट करना है 5 फैक्टर थ्योरी एंड 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स थ्योरी के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूस्ट्रेट दैट वैल्यूज कैन बेस्ट बी फोस्टर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स फॉर फोस्टरिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज among school going children. Okay friends, so this is from the 12th chapter, that is your attitude, values and interest। ये explain करना है और illustrate करना है, that is values can be best fostered during childhood। तो childhood में values का जो डेवलपमेंट है वो बेस्ट हो सकता है, एंड ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट मेथड्स फॉर फोस्टरिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज among स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन A। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सेक्शन B। और एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपका सेक्शन A एंड सेक्शन B डिवाइड करके देता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें सेक्शन A एंड सेक्शन B ऐसा कुछ नहीं है। बट फॉर ए बेटर प्लानिंग, बेटर स्ट्रेटेजी, you need to differentiate or you need to divide the syllabus into 2 sections, that is your section A and section B। that will help you a lot। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 14 चैप्टर से बहुत लोग 14 चैप्टर्स देख के साइकोलॉजी ऑप्शनल नहीं लेते हैं, लेकिन ये एक स्कोरिंग ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि सो मैनी candidates are from different backgrounds, and in a latest study it has found that 60% of the UPSC civil services candidates are from engineering background, engineering, that is your BTech। okay, and you know that you have studied in BTech, there is a paper organizational behavior, okay, and the maximum part of psychology paper 1 is from that paper। that means you have already read these things somewhere in your BTech, and कुछ चीज़ें एडिशनल है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B इज इवेलुएट द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज एक्विजिशन। फ्रेंड्स ये लैंग्वेज एक्विजिशन का जो फेज होता है ह्यूमन का, वहाँ से क्वेश्चन आया है, एंड यू नीड टू इवेलुएट द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन फेज है और लैंग्वेज एक्विजिशन है उससे रिलेटेड ये है जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, एंड यू नीड टू इवेलुएट दैट हाइपोथेसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B इज डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन आर टू कंप्लीमेंटरी प्रोसेस इन स्किल लर्निंग। ओके, डिस्कस विथ रेफरेंस टू ऑपरेंट लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं विथ रेफरेंस टू ऑपरेंट लर्निंग। देन स्टेरियोटाइप्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लेन साइटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये इंडियन सोसाइटी में भर भर के है, ये आपको पता है। ठीक है,
कहीं पे जाए, कास्ट जाओ, रिलीजन जाओ, सेक्स जाओ, ये भर भर के पढ़ा है। तो स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, आपको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम इंडियन कंटेस्ट। ये आपके 12th चैप्टर से है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड स्ट्रक्चरलिज्म कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ये फर्स्ट चैप्टर से है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1। आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन आंसर करने के लिए 6 से 6.5 मिनट मिलेंगे, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज जरूर करिएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाई डू मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस जियोमेट्रिकल इल्यूजन, एक्सप्लेन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये भी चैप्टर 5 से है। आपका जो परसेप्शन चैप्टर है, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन, उस चैप्टर से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज गार्नर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्पीयरमैन्स थ्योरी, इलस्ट्रेट। ये क्वेश्चन भी आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, बिटवीन टू थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज योर गार्नर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड योर स्पीयरमैन्स थ्योरी। फाइंड आउट करना है कि क्या क्या differences है with proper examples. The next question is citing examples from life situations, explain the phenomenon of perceptual organization. ये 5th chapter से है। Then the next question is what is vicarious learning, discuss its application in acquisition of emotional responses. तो ये भी learning chapter से 6th chapter से, ठीक है। आपको what is vicarious learning ये आपको explain करना है and is its application in acquisition of emotional responses. So the next question is define concept, illustrate different types of concepts and processes involved in the formulation of the same, ठीक है। and this question is from chapter 8। आपको concept क्या है define करना पड़ेगा and different types of concept with its process of concept। and the next question is how can language be analyzed for its similarities across कल्चर, एक्सप्लेन विथ साइंटिफिक एविडेंसेस। सो ये आपका लैंग्वेज चैप्टर से है और इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू एक्सप्लेन ओके हाउ लैंग्वेज कैन बी एनालाइज फ्रॉम इट्स सिमिलैरिटीज अक्रॉस कल्चर। तो डिफरेंट कल्चर के हिसाब से लैंग्वेज का सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है, आपको प्रॉपर एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करना है। देन द नेक्स्ट इज टू वे एनोवा इज नॉट merely an addition of to one way ANOVA, describe and evaluate with example, ठीक है। सी फ्रेंड्स, इसको ध्यान से you need to understand this question. ANOVA stands for analysis of variance and we know that there are two types of ANOVA. First one is one way and the second one is your two way. So इसमें आपको one way and two way ANOVA कैसे डिफरेंट है, कैसे सेपरेट है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटिंग रिसर्च एविडेंसेस ब्रिंग आउट द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स का रोल क्या है सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ए चाइल्ड, उसमें कल्चरल फैक्टर्स का क्या रोल है आपको विथ एविडेंस, नॉट ओनली डे टू डे लाइफ एविडेंस बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर रिसर्च एविडेंसेस, ओके। रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स आया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पुट करना पड़ेगा अबाउट द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेशिया merely a phenomenon of retrieval failure, discuss in the light of empirical evidences। हर चीज़ में फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में आप देखिए एग्जाम्पल्स ही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑलवेज आस्क फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक। कोई भी ऑप्शनल आप चूज करो, एग्जाम्पल्स आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल हो, रिसर्च एग्जाम्पल हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवैल्यूएट द यूज ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट इन पर्सनालिटी असेसमेंट, हाउ मच इफेक्टिव दिस टेस्ट or this method is in personality assessment. You need to evaluate the effectiveness of this test, okay, that is your paper and pencil test in personality assessment। कोई भी डाउट हो और किसी में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्वेश्चन में जो 2019 का जो क्वेश्चन है, किसी में आपको इलाबोरेटली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें ज़रूर मेल भेजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट हाउ टू राइट ए क्वेश्चन, please send us an email. Friends, this was all about the review session of 2019
साइकोलॉजी मेंस क्वेश्चन पेपर। एंड आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग या कैसे राइटिंग का कोई इश्यूज हो, कुछ पूछना है, प्लीज़ मेल अस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, प्लीज़ रीच आउट टू अस। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कोई भी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू, बाय बाय।